عوامی کالونی پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، متعدد وارداتوں میں ملوث ایک ملزم گرفتار، رائفل اور چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد، ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بات کر لیتے ہیں کامران منہاج سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ کورنگی پولیس کی جانب سے جو ہے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کرمنلز کے خلاف جو ہے تابڑ توڑ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ عوامی کالونی پولیس کی جانب سے بھی جو ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے جو اسٹریٹ کرائم کی متعدد جو ہے وارداتوں میں ملوث تھا۔ اس سے ایک رائفل بھی برآمد ہوئی ہے اور موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہے ملزم میرے عقب میں موجود ہے اور میرے ساتھ یہاں کے ڈیوٹی آفیسر سہیل صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح اس ملزم کو گرفتار کیا اور اس سے کیا انکشافات کیے ہیں۔ سر، یہ جو ملزم ہے ہمت، جس کو گرفتار کیا گیا، اس سے رائفل ملی ہے اور دیگر سامان، کیسے اس کی گرفتاری عمل میں آئی، اس سے کیا انکشافات کیے اور آگے کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات ہمیں اطلاع ملی اس ملزم کے بارے میں، ہمارے اپنے مخبر خاص نے ہمیں اطلاع دی کہ اس طریقے سے فلاں جگہ کے اوپر فلاں شخص موجود ہے، جس کی موجودگی کی اطلاع کے اوپر میں اور میری ٹیم یہاں سے روانہ ہوئی ہے اور ہم نے اسے وہاں جا کے حسب اشارہ جو ہے وہ پکڑا ہے۔ اس کے پاس سے ایک رائفل 223 ملی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی کنڈیشن میں، بمائے راؤنڈ کے، اس میں بلٹس بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ شخص جو ہے وہ پچھلی مرتبہ بھی اس کے بارے میں ہمارے پاس کئی کمپلینٹس موجود ہیں کہ اس حلیے کا اور اس نام کا اور اس وضاقتہ کا جو ہے وہ شخص جو ہے وہ وارداتوں میں مصروف ہے، عوامی کالونی اور اس کے گرد و نواح میں۔ ٹھیک ہے، بالخصوص آپ کے گلزار کالونی ہو گئی، بلال کی طرف ہو گئی، سنگر چورنگی ہو گئی۔ تو ابھی ان کو گرفتار کیا ہے، اس میں ان کے اوپر مقدمہ بھی قائم کیا ہے اور ان کے بارے میں CRO ان کا کرایا ہے اور ان کے بارے میں معلومات بھی ہم مختلف لوگوں سے لے رہے ہیں۔ تو کبھی اندیشہ ہے کہ کئی وارداتوں میں ان کے ملوث ہونے کا ہمیں اندیشہ ہے اور ہم اسے چیک کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسا بھی کچھ ہوگا تو اچھا، یہ جو موٹر سائیکل اس سے ملی، یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کے پاس سے برآمد ہوئی ہے، جو کہ سرکہ ہے اپنا جو ہے وہ تھانہ کورنگی سے چھینی گئی تھی۔ یہ موٹر سائیکل تھانہ کورنگی کی حدود سے چھینی گئی تھی، تو انہیں بھی ہم نے تھانہ کورنگی کو بھی مطلع کیا ہے۔ وہاں بھی جو ہے وہ FIR ہوئی ہے، ABLC والے وہاں آئیں گے، وہ بھی اپنی جو ہے وہ اس کی گرفتاری وغیرہ کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے حساب سے ایک اچھی کارروائی ہے کہ اس میں کم از کم عوام کو تھوڑا سا جو ہے وہ سکون ملے گا کرمنلز کی طرف سے۔ جی بالکل ایک اچھی کارروائی ہے۔ عوامی کالونی پولیس کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ کورنگی میں خاص طور پہ عوامی کالونی تھانے کی حدود میں جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں، اس میں واضح کمی آ سکتی ہے اور ملزم کا جو ہے کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ ممکنہ طور پر ملزم جو ہے متعدد جو ہے وارداتوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اور نیپرا نے کہ الیکٹرک کے 7 سالہ جنریشن ٹیرف کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق نیپرا نے کہ الیکٹرک کے جنریشن ٹیرف کی منظوری ٹیک RP کی بنیادوں پر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپرا نے کہ الیکٹرک کے 7 سالہ جنریشن ٹیرف کی منظوری دے دی ہے۔ اویس کیانی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ ٹیک اور پے کی بنیاد پر جو ہے وہ منظوری دی ہے، اور ٹیک اور پے کا مطلب ہے کہ بجلی استعمال ہو نہ ہو، کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ اور نیپرا نے کے الیکٹرک کی درخواست پر جو ہے وہ جنریشن ٹیرف کی منظوری جو دی ہے اور کے الیکٹرک کے 7 سالہ جنریشن ٹیرف کی منظوری کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ ممبر ٹیرف نیپرا مسعد نیاز رانا نے ٹیک اور پے کی بنیاد پر جنریشن ٹیرف دینے پر اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے اور انہوں نے LNG اور ڈیزل کے پاور پلانٹس پر ٹیک اور پے سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے صارفین پر بوجھ پڑے گا۔ ممبر ٹیرف نے ایکوٹی پر 14% ڈالر میں منافع کی بھی مخالفت کی اور اس منافع کو زائد اور غیر منصفانہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ ڈیزل پر جو ہے وہ 33 روپے اور 50 روپے 75 پیسے فی یونٹ تک جو ہے وہ منظور کیا گیا، اور LNG پر جنریشن ٹیرف جو ہے 20 روپے جو ہے 65 پیسے سے لے کر 75 پیسے تک جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور فرنس آئل پر بھی جنریشن ٹیرف جو ہے وہ 33 روپے 31 پیسے سے 34 روپے 64 پیسے فی یونٹ تک جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے۔ گیس کی اگر بات کریں تو اس پر فی یونٹ جنریشن ٹیرف جو ہے وہ 6 روپے 83 پیسے سے 9 روپے 62 پیسے منظوری فی یونٹ تک جو ہے اس کی منظور کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ الیکٹرک کے جو 7 سالہ جنریشن ٹیرف کے حوالے سے جی بالکل ایک چیز سامنے آئی ہے ٹیرف کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپرا نے کہ الیکٹرک کے 7 سالہ جنریشن ٹیرف کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا ہے۔
फैसले के मुताबिक नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी टेक आरपे की बुनियादों पर दी है। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक के 7 साला जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ का बड़ा इंकशाफ। कराची एयरपोर्ट के रॉयल सर्विस टर्मिनल पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए के टैक्स फ्रॉड का इंकशाफ। 3 कंपनियों के मुलविस होने पर 3 मुख्तलिफ FIRs भी दर्ज कर ली गई हैं। कंपनियों ने धोखा देकर जब्त शुदा दरामदी सामान बिना जुर्माने अदा कराए छुड़ा लिया। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ ने कराची एयरपोर्ट के रॉयल सर्विसेज टर्मिनल से जब्त शुदा सामान की एक और गैर कानूनी चोरी का इंकशाफ किया है। और यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पे जो एक टीम के हुक्काम की क़यादत पर जो तकरीबन हुकूमती जब्त शुदा सामान की 2 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की खुर्दबुर्द की गई है। और जो ये पोस्ट क्लियरेंस साउथ ने जो है अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक अहम इत्तला मिली थी, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई। 3 कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और जिसमें कहा गया है फूड फ्लोरेंस, मशीनरी के पुर्जे, इलेक्ट्रिक अशिया, एल्युमिनियम शीट्स वगैरह जो कब्जे में की गई थी, जो कि गैर कानूनी तौर पर लाई गई थी, उसको बिना जुर्माना अदा किए गए निकाला गया है, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है। तीनों कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। और यहाँ ये बताया गया है कि PCA ने मैसेज सादिक जहां लाहौरी एंड कंपनी, मैसेज ग्लोबल इंडस्ट्रीज और Z&Z कंपनी और इनके खिलाफ जो है 3 अलग अलग FIR दर्ज किए हैं। और जब्त शुदा सामान की कस्टम के अफसरान की मिली भगत से खुर्दबुर्द की गई है, जिसके ऊपर तहकीकात भी की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी भी सामने आएगी। अशरफ खान, ये बताइएगा कि जो कस्टम अफसरान हैं जो मिली भगत में शामिल हैं, उनका कोई नाम वगैरह सामने आया है? इब्तदाई तौर पर जो FIR दर्ज हुई है 3 कंपनियों के खिलाफ हुई है, जिसमें बताया गया है कि जब्त शुदा सामान को SRO 499/1 2009 के तहत जो है 81 लाख रुपए के जुर्माने की अदायगी पर वापसी हासिल किया जा सकता था, लेकिन उसकी भी अदायगी नहीं की। और जिसमें ये साफ जाहिर है कि जो तहकीकात हुई है उसमें आया है कि ये बिना जो है कस्टम हुक्काम के मिले हुए ये काम नहीं हो सकता था और ये बिना जुर्माना अदा किए ये माल निकला है। उनके खिलाफ भी धोखाधड़ी का जो है उसके ऊपर जो एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी और निज़ाम की खामियों की निश्चित संजीदा सवालात उठा रहा है। इसके भी तहकीकात की जाएगी और तमाम मुतल्लिका इदारों को जो मिलकर इस पर काम करना होगा, जिस पे ये जो एयरपोर्ट ऑपरेशन में जो ये चीज इंकशाफ हुआ है इसके ऊपर तहकीकात करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि एयरपोर्ट है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है, हर तरफ कैमरे हैं, CCTV कैमरे हैं, बल्कि अल्ट्रा HD कैमरे जो हैं एयरपोर्ट पर लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी अफसरान का नाम ना आना और सिर्फ कंपनियों पर ही मुकदमा दर्ज किया जाना अजीब सी बात लगती है। बिल्कुल एक अहम सवाल है ये। और जब हमने FIR ये आई थी उसके ऊपर हमने भी इनके जो उनसे वो काम उनसे यही सवाल उठाया था कि जो अफसरान के नाम सामने हैं, जैसे कि चेयरमैन FBR ने भी हाल ही में फेडरेशन हाउस का दौरा किया था, जिसमें चेयरमैन FBR ने पहली बार मीडिया के सामने ये कहा कि FBR कस्टम के अफसरान जो हैं रिश्वतखोरी में मुलव्विस हैं, जिसमें हमने सवाल उठाया था चेयरमैन FBR से भी कि इन अफसरान का नाम कब सामने आएगा। तो उन्होंने हीले बहाने करके वो तो निकल गए थे, लेकिन ये एक बार फिर ये बात सामने आई है। क्योंकि अगर देखा जाए अमूमन एक अहम सवाल ये है कि जब सामान गैर कानूनी तौर पे आया था एयरपोर्ट पे जो सर्विसेज पे जो रॉयल सर्विसेज है उन पे जब्त किया गया था, यकीनी तौर पे गैर कानूनी तौर पे माल दरामद किया गया था और दरामद कुनगाम ने गैर कानूनी तरीके से माल मंगाया था, जिसको हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया था। जब भी आपने देखा होगा कोई भी माल जब्त होता है तो वो हुकूमती खजाने में जमा हो जाता है और उसके बाद उसकी नीलामी होती है और या जुर्माना अदा करके आप उसको क्लियर करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी मिली भगत करके जुर्माना भी अदा नहीं किया और ये तमाम माल जो है 2 करोड़ 30 लाख रुपए का कौमी खजाने को जो है चूना लगा है। और यहाँ पे तमाम अफसरान की मिली भगत है, यानी कि उन्होंने अपनी जेबी भरी है और यहाँ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। इसके ऊपर FIR दर्ज हुई है और कहा है कि मजीद इकदाम उठाते हुए जो लोग इसे मुलविस होंगे उन खामियों पर संजीदगी से जो है इकदाम उठाए जाएंगे, उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। स्कैंडल एयरपोर्ट ऑपरेशन और कस्टम क्लियरेंस में पेचीदगियों और चैलेंजेस को वाज़ेह मिसाल दे रही है। इसके ऊपर हुकूमती को जो नुकसान पहुंचा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का मेला अपनी आबोताब से जारी है। फेस्टिवल का 27वां रोज रूसी फनकारों के नाम रहा। मज़ीद जान लेते हैं राहील बेग से।
जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का रंगारंग मेला अपनी आबोताब के साथ जारी है और आज फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए और आज रूस से आए फनकारों ने फिजिकल थिएटर पेश किया जिसमें ज़िंदगी की रवानी और जुस्तजू और आगे बढ़ने की लगन और उन तमाम चीज़ों को अपने नज़रिए को एक जिस्मानी हरकत के साथ पेश किया जिसे देखकर हाज़रीन ना सिर्फ हैरान हुए बल्कि तात ये बगैर भी ना रह सके और इसी के साथ यहाँ पर आज फेस्टिवल में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने गैर मुल्की फनकारों की हौसला अफजाई की उम्मीद थी आने वाले दिनों में यहाँ पर फलस्तीन, इजिप्ट, यूएस के फनकार भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे और इसी के साथ जो 27वां रोज़ था अपने इख्तिताम को पहुँचा और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 28वां रोज़ यानी कि आज भी गैर मुल्की फनकार अपने फ़न का लोहा मनवाएंगे और यूके से आए फनकार खूबसूरत प्ले शेक्सपियर फूल पेश करेंगे। इसके साथ साथ गैर मुल्की फनकार म्यूज़िक का भी तड़का लगाएंगे और आज थिएटर के साथ साथ मौसीकी का भी ख़ास एहतमाम किया जाएगा और इसी के साथ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपने 28वें रोज़ में दाखिल हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के नादरा मेगा सेंटर पर काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों के मसाइल कई साल भी हल तलब है। शहरी शेख एहसानुल्लाह ने शिकवा किया कि गुज़श्ता 5 साल से अपनी अहलिया का शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन नाकाम हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। नाज़िमाबाद का नादरा मेगा सेंटर शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम। शहरियों ने शिकवों के अंबार लगा दिए। शहरी शेख एहसानुल्लाह ने बताया कि मेरी अहलिया का शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा, तमाम कवायद और ज़वाबित मुकम्मल कर चुका हूँ। शेख एहसानुल्लाह ने मजीद कहा कि 5 साल से मेरा केस ताखिर का शिकार हो रहा है। मेरी अहलिया के वालिदैन वफात पा चुके हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट जमा करवा चुका हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। मसला ये था कि वाइफ का शनाख्ती कार्ड पहला बना हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा बनाया, वो भी बन गया। तीसरा जब बनाने गए हैं तो 5 साल पीछे की बात बता रहा हूँ कि 5 साल पहले जो मैंने इसको नादरा में दर्ज किया है उसका टोकन नंबर मुझे 152 मिला। मैं उसको अप्लाई करा, भाई अब एक बार मसला होने का जी इनके लिए बे फॉर्म लेके आएँ, इनके वालिद साहब का लेके आए, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह इनका निकालें। मैं कहा ये तो पैदाइश तो उस ज़माने में थी, अब तो नहीं मिलेगा ना पर्चे। तो आपने पहला शनाख्ती कार्ड बनाया है, दूसरा बनाया है, तीसरा बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसका श्योर हूँ, मेरे नाम से इसका बना हुआ है, इसका बनना चाहिए और मेरे बच्चों को भी नाम आना चाहिए। एक और शहरी का कहना है कि मेरे बेटे ने अर्जेंट शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया लेकिन कार्ड ताखीर से बना। एग्जीक्यूटिव मैंने यहाँ पे जमा कराया था अपने बेटे का अक्टूबर की 10 तारीख को और आज तारीख है अक्टूबर की 23 और मैंने जब हेल्पलाइन पे कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ नादरा सेंटर से ही जो है ना हमारा डेटा अक्टूबर की 16 तारीख को गया है, जबकि 7 दिन का तो उसका प्रोसेस टाइम है कि 7 दिन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा पेमेंट लेने के बावजूद भी अंदर डायरेक्टर साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमें इसके बारे में कोई चीज़ नहीं पता। हमारे भी काम है, अब जॉब से हम लोग आए हैं, ऑफ लेकर आए हैं, तो हमारे अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, सिर्फ रिन्यू कराने के लिए खड़ा हूँ, न्यू भी नहीं बनवाना। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मेगा सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है लेकिन शहरियों के मसाइल कम नहीं हो रहे। हुक्काम को चाहिए उनके मसाइल का तदारुक करे। कैमरामैन ताबिश के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में साइलिन की शिकायत का मसला हल। कराची समेत 30 अजला में अवामी अजाला शिकायती सेल कायम। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अदालतों में ज़ेर समात केसेस से निपटने के लिए अलग से 8 रुकनी निगरान और अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। अवाम के मसाइल अब हल होंगे मिनटों में। महकमा रेवेन्यू बोर्ड का इनकलाबी इकदाम। कराची समेत 30 अजला में अवामी शिकायती सेल कायम। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फील्ड अफसरान की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। सेल, जमीन की तकसीम, म्यूटेशन, अंदराजात समेत दीगर शिकायत पर सेल काम करेगा। सेल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कायम किए गए इंचार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 बतौर एडिशनल कलेक्टर इंचार्ज के काम करेगा। महकमा रेवेन्यू के अदालतों में ज़ेर समात केसेस को निपटाने के लिए अलग से 8 रुकनी कमेटी कायम। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी का सरबराह डिप्टी सेक्रेटरी लिटिगेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी में मेंबर RS एंड ECP, मेंबर गोट आबाद समेत
समेत तमाम डिविजनल कमिश्नर्स मेंबर के तौर पर शामिल, IG रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे और 30 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स मेंबर के तौर पर शामिल हैं। फोकल पर्सन कानूनी अफसरान से मुशावरत करके अदालतों में जवाब देने के लिए पाबंद होंगे। कोई भी फोकल पर्सन कानूनी अफसरान से बगैर मुशावरत के अदालतों में जवाब जमा नहीं करवाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला उन्नड़ के मुताबिक फोकल पर्सन बगैर मुकम्मल तैयारी के केसेस की पैरवी करते हैं, जिसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। आजाद नोडियो, सिटी 21। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर है। कराची से चाबहार तक फेरी चलाने पर गौर शुरू। वज़ीर आला सिंध से ईरान के काउंसल जनरल हसन नूरयान ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। तारीखी दोस्ती का नया बाब, ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। कराची से चाबहार तक फेरी चलाने पर गौर शुरू। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ईरानी कौंसल जनरल हसन नूरैन और वाइस कौंसल जनरल अली खुशरो ने अहम मुलाकात की, जिसमें वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर वक्स अली हसन जरदारी, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन और सेक्रेटरी कानून समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तिजारत के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू हुई। कराची और चाबहार के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने पर बातचीत हुई। वजीर आला सिंध का कहना था कि अगर फेरी सर्विस शुरू हो जाती है तो ज़ायरीन और तुलबा को सहूलत मुयसर होगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि ईरान के साथ हमारे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम और मजबूत हो रहे हैं। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की तिजारत हो रही है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। ईरानी कौंसल जनरल बोले कि हम चाहते हैं कि दो तरफा तिजारत को $3 अरब तक किया जाए। उन्होंने सिंध से गोश्त और फल, खास तौर पर सिंधड़ी आम और लाड़कानों के अमरूद ईरान बरामद करने की बात भी की। मुलाकात में तिजारती वफूद के तबादले पर भी इत्तफाक हुआ, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफा होगा। ईरानी कौंसल जनरल ने वजीर आला सिंध को ईरान में मुनाकिद होने वाले सकाफती फेस्टिवल में भी शिरकत की दावत दी, जो नवंबर में होगा। कराची पुलिस में तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर करने के लिए नई हिकमत अमली सामने आ गई। अच्छी तफ्तीश और केसेस को हल करने वाले अफसरान को इनामात देने का सिलसिला शुरू। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। IG सिंध और DIG ईस्ट जोन की तफ्तीशी विंग को बेहतर बनाने की काविशें जारी हैं। ईस्ट इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तमाम थानों में तैनात SIOs और तफ्तीशी अफसरान को इनामात देने का सिलसिला शुरू। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अलीना राजपर का कहना है कि जो अफसर ज्यादा से ज्यादा केसेस हल करेगा उसे स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। जो हमारे SIOs थानों पे तैनात हैं, इनको डिफरेंट टारगेट्स दिए जाते हैं और इनके टारगेट्स पे इनकी नंबरिंग की जाती है, इनकी मार्किंग की जाती है और उसमें से जो SIO सबसे बेहतर परफॉर्म करता है उसको SIO ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है, जो हमारी मंथली क्राइम मीटिंग होती है। और ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हैं और उसके बाद उनकी जो पिक्चर्स है अलॉन्ग विद देयर मार्कशीट के उन्होंने कितने अच्छे नंबर लिए, वो हम अपने ऑफिसेज में डिस्प्ले करते हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तफ्तीशी अफसरान को मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं, जिनमें मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी, गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त परेड और मुल्जिमान से रिकवरी शामिल हैं। इनामात देने के सिलसिले के बाद तफ्तीशी विंग में वाज़े बेहतरी आई है। हमारे तफ्तीशी हैं डिफरेंट टास्क में वो आइडेंटिफिकेशन परेड्स होल्ड कराते हैं, अक्यूज को पकड़ने के लिए आउट ऑफ द सिटी जाते हैं, मुगवियों को बाजियाब कराने के लिए कहीं जाते हैं। तो उन केसेस में भी, उन तमाम केसेस में उनको फिर हम CC थर्ड भी देते हैं मीटिंग में और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आई थिंक इससे द परफॉर्मेंस हैज़ इंक्रीज्ड क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट हुआ है। अलीना राजपर ने वाजे किया है कि तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी की बुनियाद पर मार्किंग जारी है, लिहाजा तफ्तीशी अफसरान खुद को इम्तिहान के लिए तैयार रखें। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। शनेसर टाउन में पार्क का इफ्तिताह, तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई पर भी शहरियों का इत्मीनान का इज़हार। शहरियों ने मुतालबा किया कि डिफेंस व्यू पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और ठेले पतारों का दायमी खात्मा यकीनी बनाया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शनेसर टाउन को सरसब्ज बनाने का मिशन, पार्क का इफ्तिताह, तजावुजात का भी खात्मा। शनेसर टाउन डिफेंस व्यू पर कायम गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और ठेले पथारे हटा दिए गए। शहरी बोले इकदाम से खुशी हुई, मगर ये अमल आर्जी के बजाय मुस्तकबिल बुनियादों पर अंजाम दिया जाए। अगर बेहतरी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इनके लिए कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि ताकि ये भी अपनी रोजी रोटी कर सके और आवाम को भी तकलीफ ना हो। मुसाफिरों का कहना है कि
दफ्तरी और स्कूल कॉलेजेस के औकात कार के दौरान मंजूर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी और महमूदाबाद के मकीन तजावुजात और गैर कानूनी रक्षा स्टैंड के 22 घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। ये होना चाहिए, वैसे कि बहुत सारे ठेले लगे हुए होते हैं और यहाँ पे सारे स्टैंड लगे हुए होते हैं, हटना चाहिए, बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं आज बिल्कुल साफ हो गया, तो अच्छी बात है कि हो गया है। डिफेंस व्यू के अतराफ मुस्तकिल लगी तजावुजात के 22 मंजूर कॉलोनी के अतराफ बनाई गई सड़कें इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस और KMC और TMC के मुलाजमीन को संजीदगी से मुस्तकिल काम करने की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला है। करंगी अल्लाहवाला टाउन में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावज़ कर गया। नमरा रियासत की रिपोर्ट। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। शहर में तवील दौरानिया की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। अहले इलाका इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं बिजली की बंदिश से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। बिजली न होने से पानी की किल्लत का भी सामना रहता है। यहाँ 3 घंटे की लोड शेडिंग हर 2 घंटे के बाद होती है, जिसकी वजह से पानी की प्रॉब्लम है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उस यूनिफॉर्म्स वगैरह नहीं हो पाते उनके अरेंज, और फिर ख़वातीन ने कपड़े वगैरह धुलाई करने होते हैं, उसकी प्रॉब्लम है। बिजली नहीं होती, पूरा 12 घंटे भी नहीं होती, 12 घंटे से ज़्यादा भी बिजली नहीं होती, कभी कभी पूरा दिन नहीं होती। कभी के इलेक्ट्रिक कॉल करो, बैलेंस करवाओ, लोन लो, अलग पैसे लगते हैं उस चीज़ के, ठीक है। गरीब अवाम को तो बहुत मसले होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। अब 12 घंटे की लोड शेडिंग है, बंदा बाहर बैठता है तो बाहर लुटेरों का भी डर होता है, बंदा गरीब अवाम जाए तो जाए कहाँ। मकीनों ने भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर मुतल्लिका इदारों से जल्द मसाइल के हल के लिए मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। शाह फैसल टाउन की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की तैयारी। चेयरमैन गोहर खटक कहते हैं कि टैक्स वसूली के निज़ाम में तरमीम नागुज़ीर हो गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। प्रॉपर्टी टैक्स आंकड़ा जिला टैक्स से मिलने वाले शेयर्स के बाद टाउन हुकूमतों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। शाह फैसल टाउन में भी इसी टैक्स की वसूली की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गयीं। चेयरमैन गोहर अली खटक बोले, 1 विंडो ऑपरेशन के तहत हर कमर्शियल इमारत से टैक्स वसूल करेंगे। कोशिश ये है कि हम हफ्ता 10 दिन में 1 विंडो सर्विस शुरू करें, और उससे पहले उसमें कुछ तरमीम भी करने हैं, क्योंकि 12 साल हो गए कराची में सर्वे नहीं हुआ है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी थी जो कि पहले सिंगल यूनिट थी, अब वो 3-4 यूनिट बन गई है, या बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो रेजिडेंशियल है उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो उसको हम प्रॉपर्टी टैक्स में ले आए। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश बोले, प्रॉपर्टी टैक्स अहम मामला है। कौंसल इजलास में इसका बारीक बीनी से जायजा लेकर इसमें जरूरी तरामीम करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स टाउनों के हवाले कर दिया गया है, और टाउनों ने अपने आपस में हम लोगों ने मीटिंग करके इसके ऊपर अभी कौंसल का इजलास बुलाना है, जिसमें जो ये जो पुराना इसका फरसुदा निज़ाम है जिसमें काफ़ी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और हम इसमें कौंसल में हम आपस में मिलकर इसके ऊपर बहस करेंगे और उसमें अमेंडमेंट करेंगे, और जितने हमारी यूसीज़ के चेयरमैन कौंसलर हज़रात हैं उनके साथ मिलकर इसका बेहतरीन निज़ाम बनाएंगे, और इंशाअल्लाह इससे टाउन को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स अगर दुरुस्त तरीके से वसूल किया जाए तो टाउन हुकूमतें माली लिहाज से खुद कफील हो सकती हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।